Hello everyone, I am Aditi from Revise Your Learning. It's a learning platform for online as well as offline classes. Here you can stream videos, can search content online and can have fun while learning. In today's video, we are going to read for the topic of income and expenditure account. In our previous videos, we have read few treatments that we are going to treat in income and expenditure account. These are few more. These are the some you can say the last treatments that we do in income and expenditure account. So as we have discussed, from receipt and payment account we prepare income and expenditure account, but we cannot take each and every item of receipt and payment account to income and expenditure account. Reason being, income and expenditure account is accrual basis and receipt and payment account is cash basis. Okay, another thing is that it records receipt and payment account. It records both capital as well as revenue, expenditures and income. But in income and expenditure account, we only record the expenditure and income which are of revenue nature and not of capital nature. So these are the few reasons why we are preparing income and expenditure and why we are treating income and expenditure. Now first is honorarium. Honorarium is just like salary, but it is not salary. It is just like salary. That means it is paid for providing some services. Okay, let's say if I have providing like if there is an NGO which is providing free education to children, I went there, I told them, and as a out of because of some gratitude or out of gratitude, that NGO wants to give me some money, so that would be honorarium, but that would not be salary because I am not receiving it on regular basis. Okay, like guest teacher ko they get honorarium and regular they are getting salary. Second is capital expenditure that we have already discussed in our previous video. Capital expenditure is that expenditure the benefit of which we receive for more than one accounting year. Just machinery we have purchased, building we have purchased. Revenue expenses, these are those expenses which are of regular nature, like we have paid salary, we have paid rent, so that are of revenue nature, so this is revenue expenses. Capital receipt are those receipt basically that we do not receive on a regular basis, which are not of revenue nature. वो हमें कभी कभी मिलते हैं, जैसे कुछ स्पेशल डोनेशन हो गया, ठीक है, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, तो वो कैपिटल रिसीट है. रेवेन्यू रिसीट के फिट हो तो वो हमें रेगुलर नेचर पे मिलती है, ठीक है, कोई हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. हमें कोई रेंट या सैलरी रिसीव हो रही है एज एन एनजीओ, हमें कुछ मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट है. सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है. जर्नल डोनेशन इज अ रेगुलर रिसीट होती है फॉर एनजीओ, तो दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसीट. सो हाउ वी ट्रीट दैट? इफ something is of capital nature, capital expenditure, capital receipt, that will go to balance sheet. Revenue expenses and revenue receipt will be recorded in income and expenditure account. तो revenue expenses को हम कहाँ रिसीव करेंगे? On debit side of income and expenditure. revenue receipt को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? On credit side of income and expenditure account. Now last is cost of goods consumed. This is again an important thing. Okay, first is I told about subscription एक important है, ठीक है. cost of goods consumed जो है वो एक important concept है, ठीक है. second another was fund based accounting जो हमने किया. अब हम इसमें पढ़ रहे हैं cost of goods consumed. how we prepare cost of goods consumed? इसके लिए there is a formula that we use here is net purchases during the year, ठीक है. नेट परचेजेस, अब ये कहाँ से मिलती है नेट परचेजेस? ये आपको मिलेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है. नेट परचेजेस बोल सकते हो, पेमेंट मेड बोल सकते हो, इसको हम और क्या बोलते हैं? पेमेंट मेड और पेमेंट पेड और पेमेंट मेड और अमाउंट पेड, इस टाइप के वर्ड्स लिखे होंगे, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगा. अब अगर तो कुछ नहीं है इसके अलावा तो ठीक है, डायरेक्टली आप इसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो. बट अगर है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. वो है क्या क्या? फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक. इफ ओपनिंग स्टॉक दिया है उस गुड्स का तो यू विल एड इट, ठीक है. कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आप उसको माइनस करो, ठीक है. तो उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे? उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको लिखोगे किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इसके अलावा हो सकता है कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन गिवन फॉर क्रेडिटर्स एज वेल. तो अगर क्रेडिटर्स है तो यू वुड एड क्रेडिटर्स, मतलब जिसको अभी हमने पैसा देना रहता है एट एंड. जैसे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करते हो, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग माइनस करते हो, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग वुड बी माइनस. तो ये जो है कुछ एक एडजस्टमेंट आप करोगे. जो भी आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट से पैसा आप उठाओगे वहां से ओपनिंग स्टॉक ऐड,
closing stock minus creditor at the beginning minus creditor at the end plus then the amount जो भी आपका आएगा that would be debited to income and expenditure. ये जो अमाउंट आपका आएगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. ओके, so this is the you can say 6 steps to prepare income and expenditure account and balance sheet. The first step is to determine opening capital fund. Like now, what is opening capital fund? It is same like opening capital. And when the word is written opening capital, then the first thing that comes to our mind should be opening balance sheet. Okay. So in this, first we prepare opening balance sheet. If this opening capital fund is given in the question, we need not to find it out. But most of the time it will not be given. You would be given some information like 1st April. Let's say if I am taking 1st April 2018 to 31st March 2019 और मुझे जो अकाउंट्स बनाने हैं वो इस डेट के बनाने हैं. सो इन द क्वेश्चन आई वुड हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन 1st April 2018 को ये असेट थी, ये लायबिलिटी थी, ये आउटस्टैंडिंग था. एंड फ्रॉम देयर आई विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस आएगा दैट वुड बी ओपनिंग कैपिटल फंड. ओके, असेट्स माइनस लायबिलिटी, आई वुड डू असेट माइनस लायबिलिटी, जो फिर बैलेंस आएगा दैट वुड बी ओपनिंग कैपिटल फंड. Okay, this opening capital fund then would be transferred to our closing capital liability side. Closing balance sheet में on liability side we would record this opening capital fund. Okay, second step is to identify income from receipt and payment account. As we have already discussed कि we do not record each and every expense from income and expense from receipt and payment account. In receipt and payment account there may be some items, so there may be some income which do not relate to current year. So we will skip those items and there may be some items जो क्या होंगी रिलेट करती होंगी बट उनमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होगी. तो अगर तो उनमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो वी विल डायरेक्टली रिकॉर्ड इट इन इनकम साइड. ठीक है, इफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सी नाउ एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें इनकम मिलती है फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम मिली है कहाँ से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो भी इनकम मिली है पहले तो वो लिख दो. देन वी नीड टू एडजस्ट सम थिंग्स, वी नीड टू ऐड एंड डिडक्ट. ठीक है, अब हमें उसमें से क्या ऐड करना है क्या डिडक्ट करना है. सबसे पहले हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग. ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या, एट द एंड कोई इनकम जो आउटस्टैंडिंग है हमारी जो हमें नहीं मिली है. ठीक है, रादर देन आउटस्टैंडिंग ऑल्दो वी विल यूज द वर्ड एक्रूड हियर, बट आप आउटस्टैंडिंग में लिख सकते हैं. एक्रूड इनकम मतलब जो हमने अर्न कर लिया हमें रिसीव नहीं हुई बट वो हमारी है तो वी वुड ऐड इट. ठीक है, उसके अलावा माइनस क्या करेंगे, अगर कोई हमारी एक्रूड है एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही हम अगर कुछ हमने एडवांस में रिसीव किया था तो अगर है रिसीव इन एडवांस किस में, बिगनिंग में, आउटस्टैंडिंग से जस्ट अपोजिट चलता है तो यहाँ से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं. तो आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग का प्लस कर देंगे एंड रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड वो हम माइनस कर देंगे, बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस. तो उसके बाद ये जो है जो भी पूरा इसका जो आंसर आएगा यहाँ से वो हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड. दैट मीन्स दैट वुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को में हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिटेड. ओके, तो ये जो है वो हमारा क्या है, इनकम की ट्रीटमेंट है. ओके, देन थर्ड ट्रीटमेंट हमारी किसकी आती है, एक्सपेंसेस की. ठीक है, पहले हमारी इनकम की थी फिर आती है हमारी एक्सपेंसेस की. अब हम एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर एक्सपेंस. देखो एक्सपेंस के लिए पहले तो हम एक्सपेंसेस कहाँ से लेंगे, रिसीट और पेमेंट अकाउंट से. हमने कोई भी सैलरी है लेट्स से हमने वो एक्सपेंस ले लिया. एड अगेन आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग. ठीक है, यहाँ पर प्रीपेड, वहां पर हमने रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड यूज किया था, हियर वी विल यूज द वर्ड प्रीपेड. प्रीपेड एट बिगनिंग और प्रीपेड एट एंड. यहाँ से फिर जो भी आंसर निकलेगा वो हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सिंपल. तो ये ऐसे हम जो है वो ये ट्रीटमेंट्स करते हैं. तो दीज आर फर्स्ट 3 स्टेप्स. 4 स्टेप्स में देखो देयर विल बी सम आइटम्स
नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। बेस्ट एग्जांपल डेप्रिसिएशन। कुछ एक नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ लॉस हो सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ये हम रिसीट और पेमेंट में नहीं शो करते बट वी वुड रिकॉर्ड इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Okay, so after preparing income and expenditure account, we will find out whether we have surplus or deficit. We will get either of this. We cannot get both. Surplus कब होगा? When we have profit, credit is greater than debit. Deficit होगा when debit is greater than credit. जो भी surplus या deficit आएगा, again we would, अगर surplus है तो यहाँ पर हम लिखेंगे opening capital fund plus surplus, ठीक है। ये हमारा कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ऑन लायबिलिटी साइड। अदर देन दैट जो भी असेट है दैट वी विल आल्सो रिकॉर्ड, ओके। एंड आफ्टर एट द एंड बोथ साइड्स एसेट एंड लायबिलिटी वुड मैच. So this is how we prepare income and expenditure account. So let's study. First is income and expenditure account versus P&L account, that means profit and loss account. Okay, so yes, both have similarities, but इनके बीच में क्या difference है that we are going to know. First is nature. Rather than nature, you can also write here as object. That would be a correct term, object. What is the objective of preparing income and expenditure account or P&L account? So you can say in income and expenditure account, तो we prepare to find it out surplus or deficit. Okay, surplus होगा, so that would be your income is greater than expenses, so that is a surplus. Expenses are greater than, that is deficit. Profit or loss account is prepared to find out again profit and loss. That means whether we have earned profit or we have incurred losses. So that is the object. Prepared by who prepared it? If we talk about income and expenditure account, that NGO, that means non-profit organization, NPO बनाती है, and P&L account is prepared by some business enterprises, that means profit earning enterprises. Method, which method we follow to prepare income and expenditure account? कहाँ से prepare करते हैं? Income and expenditure account is prepared from receipt and payment account. ठीक है, या तो वो रिसीट एंड पेमेंट से बनेगा या फिर वो ट्रायल बैलेंस से बनेगा. एंड P&L अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इफ वी टॉक अबाउट बैलेंस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या बैलेंस होता है? सरप्लस और डेफिसिट. P&L का क्या बैलेंस होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इफ यू रिमेंबर, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट एंड P&L में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ओके, सो दिस इज यू कैन से द डिफरेंस. नाउ the next is difference between receipt and payment account, income and expenditure. Quite easy. Purpose. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दैट शोज कैश बैलेंस, हमें क्या बताता है कि क्लोजिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश कितना है या बैंक बैलेंस कितना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें क्या बताता है? इट विल अगेन शो अ सरप्लस या फिर डेफिसिट. ये हमें या तो सरप्लस बताता है या फिर हमें डेफिसिट बताता है. सो दिस इज द पर्पस. नेचर, नेचर क्या है? प्रिपेयरिंग से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स कैश आइटम्स, जितना भी कैश समरी है इज जस्ट लाइक कैश बुक. तो कैश रिसीट एंड कैश पेड. सो कैश इज अ रियल अकाउंट, तो ये जो है वो नेचर हो गया इस अकाउंट का, रियल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म, कि कैसे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. सो वी रिकॉर्ड हियर क्रेडिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पर वी रिकॉर्ड क्रेडिट साइड पर पेमेंट एंड डेबिट साइड पर रिसीट. डेबिट पर हम रिसीट, जो हमारा कैश आया होगा तो हम वो डेबिट डेट कम्स इन, क्रेडिट डेट गोज आउट. रियल अकाउंट है तो हम ये फॉलो करते हैं. और अगर हम इसकी बात करें तो नॉमिनल अकाउंट की, तो हम डेबिट में क्या करते हैं? हम एक्सपेंसेस लिखते हैं. ओके, सो दिस इज द फॉर्म, जस्ट अपोजिट. नेक्स्ट इज बैलेंस. सेम एज पर्पस, इसमें तो हमारे क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा निकलता है, क्लोजिंग कैश. ठीक है, यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या होता है? कोई बैलेंस नहीं निकलता, यहाँ पर हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं. ठीक है, उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू आइटम. सो वेरी इजी, हमने पूरा चैप्टर में रीड किया है. रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स बोथ, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, रिवेन्यू नेचर की हो. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी रिकॉर्ड द आइटम विच आर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली. कैपिटल नेचर की विल गो इन बैलेंस शीट. ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, रिवेन्यू इनकम वी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट इज कंटेंट. कंटेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि रिसीट और पेमेंट में, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का हो, एनी ईयर, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर इज रिकॉर्डेड. सिर्फ हम करंट ईयर का ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं.
अगर मतलब हमें करंट ईयर का नहीं होता हमारे पास, सो वी फाइंड इट आउट बाय एडजस्टिंग फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा. सो वी रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर. If we talk about adjustment, so no, in receipt and payment account, cash receive हुआ है लिख दो, pay हुआ है लिख दो, so there is no need for any kind of adjustment. But in income and expenditure account, yes, we adjust. We adjust for unknown cash expenses, we adjust for outstanding, we adjust for something received for next year, something we have received last year. तो हम उन सब की adjustment करते हैं. Depreciation. So depreciation is a non-cash expense. So being non-cash, receipt and payment account does not record it. But in income and expenditure, if it relates to current year, yes, we record it. Okay. So this is the difference, and this was the last topic of our first chapter, NPO, class 12th accountancy. In our next video, we'll be covering our second topic or our second chapter. Okay. Thank you and have a nice day.